Myself, Haresh Kalsaria. I am working as an assistant professor in microbiology department at Sakrajan Patel University. So this is my channel. Welcome to Bioline Study Tour. And today I am going to present one more interesting topic, gene therapy. So I hope you subscribe my channel. Please like, share, and subscribe my channel with your colleagues. So today's topic, gene therapy. I will show you. These are the topic that I am going to cover. That is, what is gene therapy, how it works. I will show you how can we use this gene therapy at practical level. But this is the presentation. This is the session that is useful for students, those who are in undergraduate and postgraduate students. The students can prepare note from these sessions. How we can use gene therapy for our benefits. I will discuss with you some beneficial, some successful gene therapy that used by some companies, some researchers, some laboratories, various applications of gene therapy. At the end, I will discuss, and as I told you, 5 or 6 different successful gene therapy I will discuss with you. So this is the content of this session. So this is a slide that is useful to know what is basic introduction about gene therapy. तो आपको पता चला गया कि gene therapy क्या है, वो पहले आपको पता होना चाहिए. तो its name suggests gene therapy, that is we are using gene for therapy or therapeutic treatment. So the use of gene as a medicine. तो आप सबने नाम सुना है केमोथेरापी. केमोथेरापी नॉर्मली हम किसके अंदर यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं थेरापी के लिए. तो उसमें केमिकल का यूज करते हैं. नॉर्मली वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स, सम केमिकल एजेंट्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन फॉर्म ऑफ सम लिक्विड्स, राइट, फॉर थेरापेटिक ट्रीटमेंट. सो नॉर्मली जीन थेरापी, दैट इज यूज ऑफ जीन एज अ मेडिसिन. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अनवांटेड या तो अनडिजायर्ड जीन उसको हम रिमूव करते हैं, राइट. वी कैन डिलीट दिस जीन बाय यूजिंग सम जेनेटिक टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग सम रिकॉम्बिनेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड we transfer therapeutic or corrected gene, right, into specific cell or target cell, right, of an individual, or to repair faulty gene. So normally क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल पूरा लॉन्ग डीएनए है. तो उसके अंदर अगर कोई ऐसा आपको पता चलता है कि भाई इतना सेगमेंट है, वो सेगमेंट अगर फॉल्टी है, राइट, तो ये सेगमेंट्स आप यहाँ पे से रिमूव करके, राइट, ये जो सेगमेंट है वो आप रिमूव करके अपना जो करेक्टेड है, या तो हम बोल सकते हैं कि जो डिजायर्ड हमारा जीन है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो नॉर्मली ये जो अनवांटेड जीन है, राइट, ये फॉल्टी जीन है, वो फॉल्टी जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा. तो उसमें से जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, एबनॉर्मल मिलेगा, राइट, एबनॉर्मल प्रोटीन मिलेगा. तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन है, वो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस टॉक्सिक प्रोडक्ट हो सकते हैं. तो दैट विल, we can say, harmful to us, harmful to, we can say, host, right. So that we can cure by using some gene therapy or gene therapeutic treatment. So normally we are replacing a faulty gene, or to introduce a new gene whose function is to cure or favorably modify the clinical course of disease, right. So agar clinical problems hai, clinical situations hai, तो that we can remove, that we can cure by using this gene therapy. So I am going to discuss 5 or 6 different successful gene therapy. So in which you can see this is the first, University of California, that is in Los Angeles. उसका जो रिसर्च टीम है वो लोगों ने क्या किया, जीन्स है, वो जीन्स को कहाँ पे वो लोगों ने हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस किया, तो इनटू द ब्रेन, राइट. क्योंकि एक बहुत ही फेमस डिजीज है, आपने शायद नाम सुना होगा, पार्किंसन डिजीज आपने सुना होगा. मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम. पार्किंसन डिजीज है. ये पार्किंसन डिजीज नॉर्मली ब्रेन का डिजीज है, राइट. उसको हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली पेशेंट जो भी होता है उसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ये जो 1 हैंड या 2 हैंड्स का वाइब्रेशंस होता है, बॉडी स्टिफ हो जाता है. हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वो धीरे धीरे लॉस्ट होता है. सो नॉर्मली ये पार्किंसन डिजीज है. नॉर्मली बहुत सारे रीजन है उसके अंदर. हम बोल सकते हैं एक तो जेनेटिक एबनॉर्मालिटीज हो सकती है, राइट, जेनेटिक एबनॉर्मालिटीज हो सकती है. एक ये एक प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक एबनॉर्मालिटीज. देन हम दूसरा बोल सकते हैं जेनेटिक ऑटो इम्यूनी डिजीज अगर है, ऑटो इम्यूनी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, ऑटो इम्यूनी डिजीज है. ऑटो इम्यूनी डिजीज के साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि लुइस बॉडी, LEWIS, लुइस बॉडी
का कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो these आर दी सम पॉजिटिव रीजंस, बट अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, सम फॉल्टी जीन्स आर देयर एंड दैट कॉज पार्किंसन डिजीज। सो उसको क्योर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स का जो रिसर्च टीम था वो लोगों ने क्या किया, जो करेक्टेड जीन था उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया, ब्रेन के अंदर। और वो कौन सी मेथड से ट्रांसफर किया, तो दैट इज केमिकल मेथड, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एक मेथड आता है, राइट। दैट इज हम बोल सकते हैं पीईजी मीडिएटेड, या तो पीईजी दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। हम क्या यूज करते हैं, पीईजी, आप सबने नाम सुना होगा, पीईजी दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो विद द हेल्प ऑफ पीईजी, राइट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीकेटाइन बेस्ड मेथड भी हम बोल सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस मेथड, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर बाय यूजिंग पीईजी, राइट, हमने जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी मेथड था, केमिकल मेथड, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। तो ये रिसर्च टीम ने क्या किया कि जो जीन था उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया, बाय यूजिंग दिस लाइपोसोम कोटेड पॉलीमर, पॉलीमर का नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड दे ट्रांसफर ट्रू जीन, करेक्टेड जीन in place of faulty gene, right, or that is helpful uh, to cross blood brain barrier, and we are able to, or we can say scientists were able to solve this Parkinson disease, to remove, to replace faulty gene by using this gene therapy. So this is one of the best example of successful gene therapy. One another method, one another successful gene therapy, आरएनए इंटरफियरेंस। एक डीएनए का शॉर्ट पीस आता है, आपको शायद पता होगा, उसको हम एसआईआरएनए बोलते हैं। एसआईआरएनए क्या है, दैट इज हम बोल सकते हैं शॉर्ट इंटरफियरिंग और शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, शॉर्ट पीस, राइट, शॉर्ट पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो शॉर्ट पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, राइट, तो जो भी फॉल्टी जीन है वहां पे। बट आप पूरा बात सुन रहे हो यहाँ पे कि आरएनए इंटरफियरेंस और जीन साइलेंसिंग, क्या लिखा है, आरएनए इंटरफियरेंस और जीन साइलेंसिंग मे बी अ न्यू वे टू ट्रीट हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज बहुत ही वेल फेमस डिजीज है। सो शॉर्ट पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम बोल सकते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है, राइट, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हम उसको आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज शॉर्ट पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। सो ये जो स्मॉल पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, राइट, उसका हम यूज करते हैं, ये हंटिंगटन डिजीज है उसका ट्रीटमेंट में। बट कैसे, तो ये जो siRNA है, राइट, इज डिजाइन टू मैच द आरएनए कॉपी फ्रॉम अ फॉल्टी जीन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो एक फॉल्टी जीन है, फॉल्टी जीन है। तो ये जो फॉल्टी जीन है, ये फॉल्टी जीन का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस, और वो जो siRNA है, स्मॉल शॉर्ट इंटरफियरिंग, और वी कैन से siRNA, राइट, शॉर्ट इंटरफियरिंग आरएनए और siRNA, राइट। तो ये जो ये जो फॉल्टी जीन और siRNA, ये दोनों का जो मैचिंग है, अगर वो मैच हो जाता है, राइट, तो हम ये फॉल्टी जीन की जगह, राइट, ये siRNA यूज कर सकते हैं, siRNA हम ऐड कर सकते हैं। और ये फॉल्टी जीन की सीक्वेंस के बेस पे, फॉल्टी जीन की सीक्वेंस के बेस पे हमें जो एबनॉर्मल प्रोटीन मिलता था, एबनॉर्मल प्रोटीन मिलता था, वो एबनॉर्मल प्रोटीन की जगह, राइट, हम ये फॉल्टी जीन को रिमूव करके हम कौन सा प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस होता था, वो एबनॉर्मल प्रोटीन टॉक्सिक भी होता है बॉडी के लिए, तो वो भी एक फायदा हो गया, और साथ में फॉल्टी जीन है वो रिमूव हो गया, राइट। हम बोल सकते हैं कि करेक्टेड जीन आ गया। तो ये बेनिफिट कहाँ पे जीन थेरापी आता है कि नॉर्मली जो भी पेरेंट जनरेशन होती है, अगर उसके अंदर कोई फॉल्टी जीन है, तो वो पेरेंट्स में से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में से नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज हाउ दिस फॉल्ट इज इन इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So by using gene therapy, this is one of the most advantageous benefit of gene therapy, that is help to remove faulty gene from one generation to stop transferring of this faulty gene into upcoming generations, right? So this is one another third successful gene therapy approach, repair errors in mRNA, that is messenger RNA. Why? Because mRNA है तो mRNA में से हम पता है कि mRNA में से कैसे प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज हाउ mRNA possess message for, we can say, amino acid synthesis. What type of amino acid
to be synthesized, that depends on sequence of mRNA, right? तो mRNA के अंदर अगर डिफेक्टिव जीन है तो वो डिफेक्टिव जीन या तो जो एरर या फॉल्टी जीन है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें ब्लड डिसऑर्डर थैलेसीमिया है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का अगर डिजीज है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज कैसे होता है, तो उसके दो पेरेंट्स होते हैं, उसके फादर और उसके मदर, दो पेरेंट्स, राइट? तो एटलीस्ट ये दोनों पेरेंट्स के पास एटलीस्ट दे हैव वन डिफॉल्ट जो फॉल्टी कॉपी होती है, राइट? सीएफ जीन जो होता है, सीएफ जीन, सीएफ उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, तो सीएफ जीन अगर डिफेक्टिव है तो ये पेरेंट्स में से वन कॉपी और ये पेरेंट्स में से वन कॉपी, राइट? तो दिस इज हाउ टू कॉपीज ऑफ डिफेक्टिव सीएफ जीन ट्रांसफर टू, we can say, this person, and this is how this person gets cystic fibrosis disease from their parents. And some cancers, right, we can say treated by using this concept. One more successful advantage, researchers at Case Western Reserve University and Copernicus Therapeutics, जो organization है, right, are able to create tiny liposome, और वो tiny liposome, right, और small lipid का vacuole जैसा, but वो कितनी size का है, 25 nanometers, that can cross, right, we can say therapeutic DNA, right, that can carry therapeutic DNA through pores in the nuclear membrane, ये nanometer size का है, तो this we can say liposome इतनी small size का, और ये liposome के अंदर क्या होगा, short size का DNA होगा, और ये जो DNA है, right, वो DNA by using this liposome vacuole, a very small size nano size vacuoles, we can transfer DNA from, we can say, outside to, we can say, suitable host, right? So this is how we can cure gene, or we can insert corrected gene into the host, and this gene replace faulty genes. This is how, with the help of gene therapy, sickle cell is successfully treated in mice. So nowadays there are so many examples, there are so many suitable experiments we studied, we got, right, for gene therapy or gene therapeutic treatments. So in this slide you can get idea how to perform gene therapy. So there are various ways for performing gene therapy. So in this slide I am going to discuss first IVET, that is in vivo expression technology. तो in vivo expression technology में क्या होता है, सिंपली आपको क्या करना है कि जीन होते हैं, राइट, ये जीन किसके अंदर हमें ट्रांसफर करने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल वी आर ट्रांसफरिंग दिस करेक्टेड जीन इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट करते हैं, राइट, एनिमल और प्लांट होस्ट। तो जैसे ही कोई वायरस है या तो बैक्टीरिया है, उसके अंदर हम करेक्ट जीन इंसर्ट कर देते हैं, वो वायरस है उसको हम एटेन्यूएटेड कर देते हैं, लाइव बट वीकन, राइट, उसका जो पैथोजेनिक विरुलेंट पावर है वो हम रिमूव कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टारगेटेड डीएनए करेक्टेड जीन्स है, राइट, वो हमने वायरस के अंदर या तो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और ये बैक्टीरिया और वायरस जब प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा या तो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, तो हमें पता है कि लाइसोजेनिक साइकिल होती है, और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरस के अंदर जो भी जीन है वो इंटीग्रेट होता है होस्ट जीनोम के अंदर, एंड दिस इज हाउ वी कैन क्योर फॉल्टी जीन, दिस इज हाउ वी कैन रिप्लेस फॉल्टी जीन, राइट? So this is IVET, that is in vivo expression technology. One another things, प्लांट इज एडिबल वैक्सीन। कोई प्लांट है, वो प्लांट के अंदर अगर हमारा करेक्टेड जीन डाल देते हैं, और ये प्लांट अगर मैं आपको खाने के दूं, तो दिस इज हाउ वी कैन ईट दिस एडिबल प्लांट, एंड बाय ईटिंग दिस प्लांट वी कैन गेट दिस टारगेटेड जीन। बट यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज वेरी चीप, सेफ एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम फॉर सब यूनिट वैक्सीन। तो नॉर्मली हमें पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैक्सीन आती है, मैंने आगे एक वीडियो डाला है जिसमें अलग अलग टाइप की वैक्सीन डिस्कस की है, बहुत ही पहले का वीडियो है। सो वी कैन एडमिनिस्ट्रेट वैक्सीन, आपको इम्यूनाइजेशन पता है, वैक्सीनेशन पता है, तो वी कैन एडमिनिस्ट्रेट दिस एडिबल वैक्सीन, राइट, एंड बाय ईटिंग दिस प्लांट, राइट, वी कैन एलिमिनेट, और दिस एडिबल वैक्सीन कैन एलिमिनेट फॉल्टी जीन, राइट, defective gene, and we can cure, we can say, genetic disease. So these are the two different way. One another way, that is recombinant virus. तो normally यहाँ पे आपको क्या करना है कि recombinant virus can be used as a vector. Normally हमको पता है कि vector is an infectious
particle, infectious protein particle. Itself it is made up of proteinaceous subunits, protein subunits. तो नॉर्मली हमें पता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट पोलियो का हमें पता है कि पोलियो के वायरस है वो कैसी वैक्सीन है, लाइव बट वीकन एटेन्यूएटेड, राइट। तो पोलियो के वायरस है वो जिंदा है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट वायरस कैन बी यूज एज अ वेक्टर टू एक्सप्रेस हिट्रोलोगस एंटीजन। तो जो हिट्रोलोगस एंटीजन होते हैं, राइट, ये एंटीजन का क्या क्या काम होता है, वी कैन यूज एज अ लाइव वैक्सीन, राइट। तो नॉर्मली हमें पता है कि बहुत सारी अलग अलग तरह की वैक्सीन आती है, बट ये जो स्मॉल पॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट है वेरियोला वायरस, राइट। तो वेरियोला वायरस को किल करना है या तो वेरियोला वायरस के सामने प्रोटेक्शन करना है, तो ये वेरियोला वायरस के सामने प्रोटेक्शन करने के लिए, राइट, हम ये रिकॉम्बिनेंट वायरसेस यूज कर सकते हैं। बट ये रिकॉम्बिनेंट वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, राइट, एटेन्यूएटेड होते हैं, राइट, लाइव बट वीकन होते हैं। तो वो डिजीज नहीं करेंगे, बट वो क्या करेंगे, फॉल्टी जीन है उसको रिमूव करेंगे, right? So this is how we can use this vaccine, is a live vaccine that we used in vaccinia, but vaccinia के अंदर non recombinant vaccine था, right, that provide cross protection against this variola virus in smallpox, right? So this is how we can use recombinant viruses as a vaccine. See, in this slide I am going to discuss, there are two different features of gene therapy, first and second. तो first है उसमें क्या है, so normally हम बोलते हैं कि कोई faulty gene है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो फॉल्टी जीन है, राइट, ये जो फॉल्टी जीन है, ये फॉल्टी जीन है, एबनॉर्मल है, तो फॉल्टी जीन में से जो प्रोडक्ट मिलेगी वो भी एबनॉर्मल प्रोडक्ट है। तो ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, उसको हमें पहले, ये टॉक्सिक हो सकती है, राइट, इन्फेक्शियस हो सकती है। तो ये जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स है, एबनॉर्मल हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल प्रोडक्ट या तो एबनॉर्मल प्रोटीन है, राइट, उसको पहले हमें इनिबिट करना पड़ेगा। तो इनहिबिशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा है, आप सुनो, इनहिबिशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, राइट, that could attenuate the organism's virulence, राइट। तो अगर आप प्रोडक्ट को इनिबिट करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल एग्जांपल्स है, बैक्टीरियल स्पीसीज है, बहुत सारे ऐसे वायरस के स्पीसीज है कि जिसका प्रोटीन होता है वो इन्फेक्शियस होता है, वो पैथोजेनिक पावर शो करता है। तो by inhibiting this gene product, by inhibiting this pathogenic protein, we can reduce, we can attenuate organisms virulence, right? और वो करने से भी क्या फायदा हो कि पर्सन या तो इंडिविजुअल उसका डेथ नहीं होगा, पहला तो ये बेनिफिट, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन इनिबिट दिस जीन प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है, तो आप देख सकते हो, टारगेट जीन कैन बी सिलेक्टेड on the basis that there are no human counterparts। तो आपको फर्स्ट केस सॉल्व करना है, आपको जीन प्रोडक्ट इनिबिट करना है, तो जीन को इनिबिट करना पड़ेगा, जीन का एक्सप्रेशन इनिबिट करना पड़ेगा। तो आपको टारगेट जीन ऐसे सिलेक्ट करना है कि ह्यूमन के अंदर कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ह्यूमन को टॉक्सिक प्रूफ भी ना हो, ह्यूमन के कोई नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो, और ये जो प्रोडक्ट हो रही है, एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, राइट, दैट प्रूव एज अ विरुलेंस फैक्टर, राइट, वो भी हम इनिबिट कर पाए। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस टू फीचर फॉर जीन थेरेपी, right? So there are four different methods for gene therapy that we can normally use: gene augmentation therapy, gene inhibition therapy, killing of specific cells, right, and somatic and germline gene therapy. So these are the four methods that I am not going to discuss in this slide in this session, but I will take one another session to discuss. These are the four different methods, difference between these four methods. So gene augmentation therapy, gene inhibition therapy, killing of specific cell, and we can use for somatic and germline gene therapy. So that was we can say method for gene therapy, different method for gene therapy. So we can use gene therapy in various applications like diagnosis of genetic diseases, as we discussed, like in cystic fibrosis, in we can say blood disorders, in thalassemias, Parkinson disease, Huntington disease, that you can write here. DNA typing, that is DNA fingerprinting, that we discuss in practice session of MCQ. Our recombinant DNA technology in synthesis of human insulin, that is one of the best example. So that we can synthesize in bacteria also by using DNA cloning mechanism. So these are the different, we can say, treatment. These are the different tools and techniques that we can use to improve gene therapy। and hepatitis B वैक्सीन, अभी रिसेंटली हमें पता है कि हेपेटाइटिस जो वायरस है उसके ऊपर जो सिरोसिस होता है लिवर का, उसके ऊपर अभी नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में गया है। तो ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन है जीन थेरेपी की।
देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ जीन थेरापी, लाइक जीन थेरापी है उसमें पहले तो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, राइट। हमें जीन सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, फॉल्टी जीन कैसा है वो वो हमें पता होना चाहिए, तो हम वो रिमूव कर पाएंगे। उसका काउंटर पार्ट होना चाहिए कि उसके जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट में हम करेक्टेड जीन डाल सकें। इम्यूनी रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। समटाइम ऑटो इम्यूनी responses, autoimmune disease produce and that cause damage to host, right। short lived nature of gene therapy, एक बार करेक्ट कर दिया फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो, उसकी जनरेशन में से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, तब तक ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जीन थेरेपी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसके ऊपर वर्क हो रहा है। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू इम्प्रूव जीन थेरापी। अभी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी कोई परमिशन नहीं है जीन थेरापी के लिए। So problem with viral vectors, because sometimes viral vectors we made attenuated, but sometimes it turned into, we can say, uh, pathogenic. It turned into virulent, right? And this virulent viral vectors cause disease into host and multi-gene disorder. Sometimes we are trying to remove faulty gene, but that cause gene disorder. Then that will produce some more defective genes in target gene, right? So this is how we require more expertization, we require more facilities. So this is very costly, right? But with the advancement of technology, with the advancement of literature and etc., we can use gene therapy at a broad level, at successful level. But still, I we have hope to get gene therapy for future diseases, for future treatments, that will help to stop, that will help to prevent passing of genetic deformation, genetic defects from patient to next generation, right? So I hope you enjoy this gene therapy session. आपको मजा आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल एज दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल एज dissertation student. This is theoretical video, this is not a practical demonstration. I hope you enjoy this video, you can prepare note from this session. अगर आपका कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम @bioline. So if you have any question, you can ask in comment box. I will reply or answer soon. Thank you for watching. Have a happy day. Thank you.